अस्सलामुअलैकुम आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मछली पालन मंसूबे के जरिए मछेरों को रोजगार मिल रहा। जलपली तालाब में मछलियां छोड़ने के प्रोग्राम में वजीर सविता की शिरकत। राजेंद्र नगर चिंतलमेट फर्नीचर गोदाम में आती जदगी से लाखों रुपयों का नुकसान। रुई और लकड़ी ने तेजी से आग पकड़ी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के मुंतखबा वीज़ों के लिए उम्मीदवार का शख्सी इंटरव्यू नहीं होगा। वज़ारत ख़ारिजा से कौंसिल खानों को अहकामात जारी। और एशिया कप सुपर 4 में टीम इंडिया जीत के करीब पहुंचकर हार गई। मोहम्मद रिजवान और नवाज ने पाकिस्तान को दिलाई सनसनीखेज मैच में कामयाबी। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने जनगांव में मछली के बच्चों की मुफ्त तकसीम प्रोग्राम का आगाज़ किया। जनगांव के स्टेशन घनपुर में उन्होंने MLA राजैया के हमरा मिलकर मुकामी तालाब में 3 लाख मछली बच्चों को पानी में अफजाइश के लिए छोड़ा गया। तलासानी ने कहा कि देही मईशत को मजबूत बनाने और मौरूसी पेशों को जिंदा रखने के मकसद से TRS हुकूमत ने इन प्रोग्रामों का आगाज़ किया है। ఈ చేప పిల్లల రొయ్య పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని మా కమిషనర్ లచ్చిరామ్ గారు అదే విధంగా మా జాయింట్ డైరెక్టర్స్ గానివ్వండి, అదే విధంగా ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారులు జిల్లాలలో వారి సబార్డినేట్స్ గాని మరి ఈ కార్యక్రమాలను రూపొందించడమే కాకుండా మత్స్యకారులకు మేలు జరగాలి. మీరు చూసినారు తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకుడే ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి. వారు పల్లె పల్లెన గ్రామ గ్రామాన తిరిగినప్పుడు ఒకవేళ తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధిస్తే గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎట్లా బలోపేతం కావాలి, కులవృత్తుల మీద ఆధారపడ్డ వాళ్లకు ఆర్థికంగా ఎట్లా పైకి తీసుకురావాలి అనేటువంటి ఒక కల్పన మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉండే. అందుకే వారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇక్కడ చెరువులు ఉన్నాయి, చెరువులను బాగు చేసి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం చేసి చేపలు ఇయ్యాలి అనేటువంటి ఆలోచన మనం అడగలే. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులు ఫ్రీగా చేపలు ఇవ్వమని అడిగినరా? కానీ వారి యొక్క మనసులో ఉంది. ఇంత పెద్ద కుటుంబాలు, ఇంత పెద్ద పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి కులాలకు మనం పని కల్పించవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. మరి వాళ్ళు కార్యక్రమాన్ని స్వీకారం చుట్టినప్పుడు ఫస్ట్ 3939 రిజర్వాయర్లు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి 2016-17లో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇది సంవత్సరం పెంచుకుంటూ పోయి ఈ సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి 26,778 రిజర్వాయర్లలో చేపలుతున్నామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఆ రోజు ఏర్పాటైనటువంటి 3,900 మరి 39 ఎక్కడ, ఈరోజు 26,778 చెరువులలో ఈ చేపలు వదిలేటువంటి కార్యక్రమం మీరు చూశారు. ముఖ్యమంత్రి గారు నిండు శాసనసభలో చెప్పిండు అసెంబ్లీలో, రాష్ట్రంలో ఏ కుంట అయినా, ఏ చెరువు అయినా, ఏ రిజర్వాయర్ అయినా దాంట్లో హక్కులన్నీ మత్స్యకారులకే ఉంటాయని చెప్పినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి గారు. हैदराबाद के मुज़ाफ़ात जलपली इलाके के बड़े तालाब में मछली पालन मंसूबे के तहत मछली बच्चों को छोड़ा गया। रियासती वज़ीर सविता इंदिरा रेड्डी और मुकामी TRS कायदीन, जलपली म्यूनसिपल कमिश्नर सुदर्शन, म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। रियासती वज़ीर सविता इंदिरा रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि मछली पालन मंसूबे को फ़रोग़ देकर इस पेशे से वाबस्ता ख़ानदानों को रोज़गार फराहम करने की हुकूमत इक़दामात कर रही है। సమాజంలో అట్టడుగు స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు ఒక మెట్టు ఎక్కాలనేది ఆర్థికంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. దానికి సంబంధించి నిజంగా సమాజంలో మార్పు రావాలంటే వెనుకబడ్డ తరగతులు, వెనుకబడ్డ కులాలు, అట్టడుగు వర్గాలలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆర్థికంగా ఎదగడానికి ప్రభుత్వం నుండి చిరు సాయం ఏ విధంగా అందిస్తున్నారని దయచేసి అందరూ కూడా గమనించాలని మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ ఈరోజు
ఇక్కడ ఉన్న సొసైటీ వాళ్ళు, సొసైటీ సభ్యులతో పాటు మా చైర్మన్ గారు, మా కౌన్సిలర్ ఇక్కడ ఉన్నారు, జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ గారు అబ్దుల్లాతో పాటు వారందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకొని ఈ ప్రాంతాన్ని కొంత నీట్గా చేసిస్తే వాళ్ళకు కూడా చేపలు పట్టుకోవడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఒకటి. తర్వాత చేపలు పోకుండా ఉండేటట్టు, ఎక్కడైతే వాటర్ పోతా ఉన్నాయో పోకుండా ఉండేటట్టు చెరువుల నీళ్ళు కూడా సేఫ్గా ఉండేటట్టు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వీలైనంత తొందరలో ఈ చెరువు బ్యూటిఫికేషన్ ఏదైతే గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు ఇచ్చారు 9 crores సంబంధించి, దాన్ని కూడా వీలైనంత తొందరలో పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कल रात सरूर नगर का दौरा किया। सरूर नगर तालाब में गणेश निमज्जन के इंतजामात का उन्होंने तफसीली जायजा लिया। गणेश निमज्जन के मौके पर किसी भी तरह का कोई वाकया रोनुमा ना हो, इसके लिए यहाँ CCTV कैमरों की मदद से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। महेश भागवत ने शहरियों से अपील की है कि वो गणेश निमज्जन को पुरअमन बनाने में पुलिस के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि गणेश निमज्जन के मौके पर इंतजामिया के अहकामात का ख्याल रखना तमाम कमेटियों के लिए जरूरी है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर चिंतल मीट में कल रात भयानक आतिशबाजी का वाकया पेश आया। इस हादसे में फर्नीचर का गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो गया। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त गोदाम में कोई भी मौजूद नहीं था। इस हादसे में लाखों रुपयों का सामान आग की नजर हो गया। बताया गया है कि बरकी शॉर्ट सर्किट इस हादसे की असल वजह है। गोदाम में रुई और लकड़ी का जखीरा होने की वजह से आग तेजी से फैली और पूरा गोदाम जल गया। मुकामी लोग और आतिश बचाव अमले को काफी देर तक आग बुझाने के लिए कोशिश करते देखा गया। जिले महबूबाबाद के बंगलामरी पेड़ा में MLA रेडया नायक ने आसरा पेंशन के कार्ड्स तकसीम किए। मरीपेड़ा म्यूनसिपल दफ्तर में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में महबूबाबाद MP मौलूद कविता के अलावा दीगर लोग भी शरीक थे। कायदीन ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि TRS हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा अवामी बहबूद के कामों को यकीनी बना रही है। స్థానిక ఎమ్మెల్యే డిఎస్ రెడ్డి గారి సహకారం మైనార్టీలో పేదలైనటువంటి వితంతువులకు, వృద్ధులకు, మరి బోధకాలైనటువంటి వారందరికీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. మరి మరిపేడ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పేదవారందరికీ కూడా ఎలాంటి తారతమ్య భేదం లేకుండా వారందరికీ కూడా ఈరోజు మైనార్టీలందరికీ కూడా ఆసరా పింఛన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కేసీఆర్ గారికి కూడా మేము సలాం చేస్తూ వారి వెంటనే మేము ఎల్లంటూ చెప్పేసి మైనార్టీల పక్షాన మాకు ఇచ్చినటువంటి సమావేశం సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. నియోజకవర్గంలో ఇప్పటికి 7,000 పెన్షన్లు, అందులో ఒక 5% మాత్రం రాకపోవచ్చు కానీ అన్ని పెన్షన్లు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి నా చేతుల మీదుగా ఇవ్వడం జరిగింది అని మీకు తెలియజేస్తాం. మన మండలంలో సుమారు 2,300 మా నియోజకవర్గం మన మరిపడ మండలం ఇప్పుడున్న మరిపడ మండలం మున్సిపాలిటీ का। अमेरिकी वीज़ा की दरख्वास्त गुजारों के लिए बड़ी खुशखबरियां आई हैं, जिसके मुताबिक जारिया साल 31 दिसंबर तक कई ज़ुमरे के लोगों को बगैर शख्सी इंटरव्यू के वीज़े जारी किए जाएंगे। इस सिलसिले में अमेरिकी महकमा खारिजा ने कौंसिल जनरल के अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी हैं, जिनमें मुख्तलिफ ज़ुमरों के वीज़ों के लिए शख्सी इंटरव्यूज़ नहीं होंगे। ताहम हुक्काम ने वाज़ेह किया कि उन लोगों के लिए कोई रियायत नहीं होगी जिन्होंने माजी में दरख्वास्तें दी हैं और उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई हैं। एशिया कप के सुपर 4 के सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को शिकस्त दे दी। हिंदुस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 182 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली के शानदार निस्फ सेंचुरी भी शामिल है। जवाब में पाकिस्तान की टीम शुरू में उस वक्त लड़खड़ा गई जब कप्तान बाबर आजम आउट हो गए, लेकिन जारहाना बल्लेबाज रिजवान ने तन्हा तौर पर अपनी टीम की कामयाबी में अहम रोल अदा किया। रिजवान ने 71 रन बनाए। उनके साथ मोहम्मद नवाज ने अच्छी शिराकतदारी निभाई। आखिरी ओवर की आखिरी 2 गेंदों में पाकिस्तान को 2 रन बनाने थे, मगर आसिफ अली ने जीत का शॉट लगाकर पिछली हार का बदला बराबर कर दिया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए।
दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाने की पाकिस्तानी मीडिया ज़राइयों ने तस्दीक की हैं। जैसे ही ज़मीन कांपने लगी, लोग कलमे तैयबा का विर्द करते हुए घरों से भाग निकले। खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाने की इत्तलात है। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई और इसका मरकज़ अफगानिस्तान के हिंदू कश पहाड़ी रीजन में ज़मीन की 10 किलोमीटर गहराई में पाया गया। ताहम अभी तक किसी भी जानी या माली नुकसान की इत्तलात नहीं है। कनाडा के सूबे सेकिचुआन में चाकू के वार से 10 अफराद हलाक और कम से कम 15 जख्मी हो गए। सेकिचुआन में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने बताया है कि ये हमले मुतादिद मुकामात पर हुए। पुलिस की जानिब से 2 मुश्तबा अफराद डेमियन सैंडरसन और माइल्स सैंडरसन की तलाश जारी है, जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो एक सियानसान रोक कार में सफ़र कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मुतासिरीन में से कुछ लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जबकि बाकी जख्मी लोग शायद बीच बचाव के लिए आए थे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इन वाक़यात को खौफनाक और दिल दहला देने वाला करार दिया, जबकि सूबे के वज़ीर आज़म स्कॉट मोए ने ट्वीट किया है कि इस बेहुदा तशद्दुद से होने वाले दर्द और नुकसान को मुनासिब तौर पर बयान करने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं हैं। सेकिचुआन हेल्थ अथॉरिटी ने कहा है कि कई मुकामात पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। We are still looking for the 2 suspects. We are asking residents across Saskatchewan and our neighboring provinces to be vigilant. At this stage in our investigation, we believe some of the victims have been targeted by the suspect and others have been attacked randomly. The 2 suspects are Damian Sanderson and Miles Sanderson. Damian Sanderson is described as a 31-year-old male, 5'7", 155 pounds, with black hair and brown eyes. Miles Sanderson is a 30-year-old male, 6'1", 240 pounds, with brown hair and brown eyes. Their pictures are available on social media channels and websites. सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा के निगरान इदारे बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को $3.5 मिलियन का अतिया दिया है, जिसमें एक बड़ी रकम यानी 1/3 हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में अपनी साइबर सेडरूफ लेबॉरेटरियों को जदीद बनाने में खर्च की जाएगी। खलीजी खबर रसां इदारे अल अरेबिया की खबर के मुताबिक इस फंडिंग से एजेंसी की रेगुलेटरी सलाहियतों को मजबूत करने में मदद मिलेगी, ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए जा सकें। जौहरी टेक्नोलॉजी के महफूज इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए इसे IAEA के रुकन ममालिक को वसाइल और ख़िदमात फराहम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। बकिया 1 मिलियन जौहरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज़ोनोटिक बीमारियों से निमटने के लिए एजेंसी के कामों में इस्तेमाल होंगे। अफगानिस्तान के सूबे हेलमंद में एक बम धमाके के नतीजे में 4 बच्चे हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। शेनोआ न्यूज़ एजेंसी ने सूबाई पुलिस के तर्जुमान अहमद जॉन के बयान का हवाला देते हुए बताया कि धमाका हेवाद बाजार के इलाके में हुआ। बताया गया है कि तमाम मुतासिरीन की उम्रें 7 से 14 साल के दरमियान थी। एक मुकामी डॉक्टर ने बताया कि धमाका उस वक्त हुआ जब बच्चे अपने स्कूल के अंदर असलहा लेकर आए और इससे खेलना शुरू किया। इस धमाके में 3 बच्चे मौके पर ही दम तोड़ गए। धमाके का एक और जख्मी बाद में सूबाई दारुल हुकूमत लश्कर गाह के अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। एक निजी सेसना तैयारा इतवार की शाम लटोया के साहिल के करीब गिर कर तबाह हो गया। फ्लाइट राडार 24 वेबसाइट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड सेसना 551 तैयारा जनूबी स्पेन के जेरेस से परवास कर रहा था। हादसे के शिकार इस बदकिस्मत तैयारे को, जिसमें 3 रुकनी फैमिली और अमला सवार था, काफ़ी देर तक बेसिमत सफ़र कर रहा था। स्वीडन की रेस्क्यू सर्विस के तर्जुमान ने कहा कि हमें मालूम हुआ है कि तैयारा लटोया के शहर वेंट स्प्लस के शुमाल मगरिब में समंदर में गिरकर तबाह हो गया है। तबाह होने से पहले तैयारा राडार से गायब हो गया।
स्वीडिश मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन के जोहान वॉलस्ट्रोम ने कहा है कि जर्मन और डेनमार्क के जंगी तैयारों को उससे कब्ल तैयारी का मुआयना करने के लिए भेजा गया था जब ये उन ममालिक की फिजाई हुदूद से गुजर रहा था, लेकिन वो राब्ता करने से कासिर थे। बताया गया है कि हादसे के बाद बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर्स को तैयारा तलाश करने के लिए रवाना किया गया। सेसना 551 एक 14 मीटर लंबा सिंगल पायलट जेट है जो 6 से 8 मुसाफिरों को ले जा सकता है। वर्जीनिया में इतवार के रोज एक फायरिंग वाक़े के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए हैं, जिनमें नॉरफोलिक स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा भी शामिल हैं। CNN की खबर के मुताबिक इतवार को हुकाम ने बताया कि वर्जीनिया के नॉरफोलिक में रात भर होने वाली फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। हमले में जख्मी तमाम 7 अफराद को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 जख्मियों ने दम तोड़ दिया। नॉरफोलिक स्टेट यूनिवर्सिटी ने कहा कि फायरिंग का निशाना बनने वाले कुछ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। CNN के मुताबिक नॉरफोलिक पुलिस ने मुमकिना मोहरे किया मुश्तबा शख्स के बारे में कोई मालूमात जारी नहीं की है। अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर पर लगाम लगाने के लिए सदर बाइडन ने तजवीज भी रखी, लेकिन इसको अभी मंजूरी नहीं मिली। कुवैत में इसराइली मुखालिफ जज्बात उरूज पर हैं। आज़रबाईजान में वर्ल्ड कराटे लीग 2022 के मुकाबलों के दौरान कुवैती नौजवान मोहम्मद मिशाल अल अतीबी ने इसराइली हरीफ खिलाड़ी के साथ मुकाबले में हिस्सा लेने से इनकार करते हुए फ़लस्तीनियों से अपनी वाबस्तगी और मोहब्बत का सबूत पेश किया है। अल अतीबी को बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट के मर्दों के 60 किलोग्राम डिवीजन में हिस्सा लेना था, ताहम जैसे उसे मालूम हुआ कि वो इसराइली हरीफ रोनन गैतबर्ग से मुकाबला करने वाले थे, वो मुकाबलों से दस्तबरदार हो गए। हालिया बरसों में अरब और मुस्लिम ममालिक के खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने फ़लस्तीनी काज की हिमायत में बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में इसराइली मुखालिफिन का सामना करने से दानिस्ता तौर पर गुरेज किया है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ नियर स्टेट पॉलिसी, एक अमेरिकी थिंक टैंक की तरफ से 2019 में कराए गए एक सर्वे ने जाहिर किया कि 85% कुवैती इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की मुखालिफत करते हैं। गुज़िश्ता साल मई में कुवैत की कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ऐसे बिलों को मंजूरी दी थी जो तेल अवीव हुकूमत के साथ किसी भी मुआहदे या ताल्लुकात को मामूल पर लाने को गैर कानूनी करार देते हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मछली पालन मंसूबे के जरिए मछेरों को रोजगार मिल रहा। जलपली तालाब में मछलियां छोड़ने के प्रोग्राम में वजीर सविता की शिरकत। राजेंद्र नगर चिंतलमेट फर्नीचर गोदाम में आतिशबाजी से लाखों रुपयों का नुकसान। रुई और लकड़ी ने तेजी से आग पकड़ी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के मुंतखबा वीज़ों के लिए उम्मीदवार का शख्सी इंटरव्यू नहीं होगा। वज़ारत ख़ारिजा से कौंसिल खानों को अहकामात जारी। और एशिया कप सुपर 4 में टीम इंडिया जीत के करीब पहुंचकर हार गई। मोहम्मद रिजवान और नवाज ने पाकिस्तान को दिलाई सनसनीखेज मैच में कामयाबी। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।